discuss about this topic, why this mind swing kind of thing is happening. Okay, so how many of you think this is most relevant session for you? How many of you think? Okay, anyway, we discussed that today's student having lot of issue, mind issue is there. So my question is that SCB is the most number one college in Orissa. Despite of all these things, most talented students are coming here. Despite of coming to this college, sometimes why you feel like this? What is the problem? क्या प्रॉब्लम है कि जिसके वजह से आपको लगता है कभी कभी बहुत टेंशन में है, कभी कभी लगता है कि आगे जाके क्या होगा कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कभी कभी लगता है जिंदगी में कुछ हो पाएगा, मतलब ये जो कंपटीशन चल रहा है इसमें भी हम आगे जा पाएंगे, ऐसे क्यों फील हो रहा है? यस, फ्रॉम गर्ल्स साइड आई वांट टू नो. यस, ड्यू टू प्रेशर. ओके, फैमिली प्रेशर. फैमिली अभी तक हुआ नहीं ना? ओके, पेरेंट्स प्रेशर. ओके, बॉयज साइड एनी इशू? Yes, I think that the students should be more communicative. So we are in the number one college in SCB Medical College. So that's why students should be proactive and sessions should be interactive. Okay. So what is the issue? Boys, क्लास में ये सेशन आने के लिए ज्यादा स्ट्रेस में नहीं है ना? यस. तो क्या प्रॉब्लम लगता है आज के टाइम में? और दिस session when I am taking, it's not about you, it's all about the whatever the society is happening, means whatever the student situation, all thing we are discussing, because you are going to be doctor, and when you will be doctor, so you will face what is the society is facing, according to that you will do the thing. So that's why we are discussing not only about you, so we are discussing about the what the society is facing. Can you please slide, can you go to that? So now you see some slides I am showing that students also having lot of pressure. So this is the student, he is from AIMS, and after that also some problem is there. Next. Previous one. Yes. So this is the statistics of India. Means among the 1 lakh people, among the 1 lakh, 12.4 commit suicide. Okay. So 57 million people are in anxiety. 57 million means around 5 crore people are in anxiety. Okay, and 37 million people are in depression kind of thing. So my question is that nowadays school college number is increasing, right or not? School college number is increasing, job market is increasing, facilities are increasing. Despite of all these things, why this is happening? Please, क्यों ऐसे हो रहा है कि बार बार हम लगातार देखते जा रहे हैं कि लोग मेंटल रिलेटेड इशू में फंसते जा रहे हैं. WHO is predicting in the next 5 to 10 years the most people will face the issue related to mind. So आप लोग थोड़ा इनपुट दीजिए, इसको याद है उनको ये कर दीजिए, तो आप थोड़ा इनपुट दीजिए, तो इस टाइप का इश्यूज क्यों बढ़ रहा है? यस प्लीज, कैन यू टेल? पढ़ाई के. अच्छा, कोई है जो ओपनली बोल सकते? यस. Developments and conflicts. So the question is about our feelings and how what I feel is that this feeling is more about the internal reflection of who we are, the mind, that is not supposed to be a stable entity and not about outer world materialistic and things. Okay. Right, thank you. Anyone else want to give some input? Anyone else? Okay. So मैं एक
आपको पास्ट टाइम बताता हूं, उससे रिलेट करेंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो हमारे इस्कॉन मुंबई के जो हेड है, इस्कॉन मुंबई के जो हेड है, he is passed out from IIT मुंबई, ओके। IIT मुंबई के पास आउट है 93 में, कौन से ईयर में? 93 में, ठीक है। तो जब वो पास आउट हुए, उनके एक बैचमेट थे, ठीक है, उनके एक बैचमेट थे। तो जब पढ़ाई करते थे तो उस टाइम में उन्होंने सुइसाइड करने के लिए अटेम्प्ट किए, ठीक है, सुइसाइड करने के लिए अटेम्प्ट किए। तो somehow और अदर्स जो सुइसाइड करने के लिए अटेम्प्ट किए थे, ऐसे फैन से लटक के सुइसाइड करने के लिए अटेम्प्ट किए। somehow फॉर्चुनेटली वो फैन गिर गया, फैन गिर गया और ये बच गए। तो बच जाने के बाद ये जाके उनके दोस्त को पूछे कि ऐसे क्या हुआ था कि हम लोग देखते हैं इंडिया में बच्चे आईआईटी आने के लिए मरते हैं, लेकिन आप आईआईटी आने के बाद मर रहे हो, ये कौन सा कारण हो सकता है? तो उसके बाद उनका उत्तर सुनिए। वो बोले कि एवरी टाइम इन ऑल द एग्जाम आई वाज टॉपर, in all the exam I was topper, but this time I came to second position. हर बार मैं टॉप करता था, हर बार मैं टॉप करता था, लेकिन इस बार मैं सेकेंड पोजीशन में आ गया। तो इन्होंने पूछे कि ऐसा कौन सा बड़ा बात हो गया कि टॉप करते थे अभी सेकेंड पोजीशन में आ गए, ये कौन सा बड़ा बात हो गया? तो उनका उत्तर सुनिए। तो कह रहे हैं, देखिए ये प्रॉब्लम्स फ्रेंड सर्कल या सोसाइटी के लिए तो नहीं है, ये प्रॉब्लम फ्रेंड सर्कल या सोसाइटी के लिए हो नहीं सकता है, लेकिन प्रॉब्लम्स तो सोसाइटी या फ्रेंड सर्कल क्रिएट नहीं करता है ना। प्रॉब्लम्स तो सोसाइटी या फ्रेंड सर्कल क्रिएट नहीं करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है माइंड, प्रॉब्लम क्रिएट करता है माइंड। तो इसीलिए देखिए ये जो माइंड है ना, ये माइंड है ना, इसको सही स्थान में कंट्रोल में लगाना बहुत जरूरी है। ये जो माइंड है ना, इसको अगर ठीक से कंट्रोल नहीं होगा तो ये बहुत प्रॉब्लम करेगा। इन महाभारत युवान, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट अर्जुना? हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट अर्जुना? यू डोंट नो? Okay, so what was Arjuna's position? He was the most talented archer, most talented. लेकिन सबसे ज्यादा talented होने के बावजूद भी जब युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, he is telling to Krishna that I am completely depressed. I am completely depressed. All the body symptoms is showing that he is completely depressed. He is telling that my body is trembling. This Gandhi bow is coming out from my hands and my hairs is standing, and this symptoms is showing that he is really in depression. उनको करना क्या था? युद्ध तो करना ही था, युद्ध तो करना ही था। सबसे टैलेंटेड व्यक्ति हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कह रहे हैं कार्पण्य दोषा अपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता यत्से सुनिश्चितम गृहीतान में शिष्यस्ते अहम साधिवाम त्वं प्रपन्नम। Arjuna is telling that due to the confusion, due to indecision, I am not able to take the right decision. What I need to do? Hey Krishna, I am taking your shelter. You just guide me. What I need to do? देखिए बात यह है, सबसे टैलेंटेड व्यक्ति है, सबसे टैलेंटेड व्यक्ति है, युद्ध ही करना है, और युद्ध क्षेत्र में अभी जाके कह रहे हैं मैं डिप्रेस्ड हूं। तो ऐसे हो सकता है यू आर द मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट, आप सबसे टैलेंटेड हैं, पढ़ाई में सबसे आगे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ सिचुएशन ऐसा आएगा मेरे दोस्त, ऐसा कुछ सिचुएशन आएगा आप भी कंप्लीटली हेल्पलेस फील करेंगे। आपका जितना पढ़ाई है, आपका स्कोर्स, मोस्टली आप जितने भी स्टूडेंट है आप देखेंगे हर स्कूल में जो पढ़ के आए हैं आप लोग टप्पर हुए होंगे उस स्कूल में, लेकिन इसके बावजूद भी आपको कुछ सिचुएशन ऐसा आएगा आपको लगेगा कि आई एम कंप्लीटली फिनिश्ड, मैं इस परिस्थिति में लग रहा है मुझसे कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसा होता है कि नहीं? ऐसे होता है कि नहीं? तो इसीलिए देखिए वो अभी
सोच रहे हैं, हे कृष्णा प्लीज एक्सेप्ट एज माय डिसाइपल। तो देखिए कृष्णा और अर्जुन इनके रिलेशनशिप क्या था? भाई, सखा। सखा मतलब फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप इज द मोस्ट कंफर्ट जोन। फ्रेंडशिप एक ऐसा जोन होता है, कंफर्ट जोन। फ्रेंडशिप में हम लोग क्या करते हैं? जाते हैं, चाय पीते हैं, थोड़ा लड़की लोगों को देखते हैं, गप्पे भी मारते हैं, यही करते हैं ना। फ्रेंडशिप इज द मोस्ट कंफर्ट जोन। लेकिन अभी अर्जुन ने कंफर्ट जोन से निकल के कृष्ण को बोल रहे हैं, आई एम कंप्लीटली रेडी दैट यू जस्ट इंस्ट्रक्ट मी। तो इसीलिए देखिए जीवन में कभी कभी ऐसा है ना, हर व्यक्ति कितना भी टैलेंटेड हो या ना हो, लेकिन फिर भी ऐसा स्थिति आ जाता है, उनको लगता है मुझे कुछ हेल्प चाहिए। हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट माइकल जैक्सन? माइकल जैक्सन के बारे में किसको पता है? माइकल जैक्सन, व्हाट ही वाज डूइंग? डांस। इतना जबरदस्त डांसर और इतना रेपो क्रिएट किया था। आज के टाइम में जितना भी सेलिब्रिटी है इतना रेपो शायद कोई क्रिएट ही नहीं किया था। माइकल जैक्सन जिस हिसाब से रेपो क्रिएट किया था, माइकल जैक्सन उनका एक तो है मून वॉक, वो इतना फेमस थे, उसके साथ साथ गाना भी बहुत अच्छा गाते थे। सो एनी प्रोग्राम वेदर इट इज इन न्यूयॉर्क सिटी, वेदर इट इज इन लंदन, वेदर इट इज इन वाशिंगटन डीसी, लोगों का क्राउड इतना था मेरे दोस्त, इतना क्राउड होता था। कहां पे भी प्रोग्राम होने के लिए जा रहा है तो लगभग 40 एम्बुलेंस लाके खड़ा करते थे। 40। क्यों? नाच गाना तो होने के लिए जा रहा है ना, नाच गाना होने के लिए जा रहा है, लेकिन फिर भी 40 एम्बुलेंस क्यों खड़ा करते थे? एनी आइडिया? क्राउड कंट्रोल करने के लिए। लेकिन क्राउड कंट्रोल करने के लिए क्या एम्बुलेंस का जरूरत पड़ता है क्या? यस, एनीवन? यस, सॉरी। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है। एनी अदर इनपुट? यस, एनी अदर इनपुट? एक्चुअली ये जो माइकल जैक्सन था, इसका रेपो इतना था, वो जब एंट्री करते थे लोगों का क्रेज इतना था तो स्टैम्पेड हो जाता था। और माइकल जैक्सन जब प्रोग्राम कर रहे हैं, उनका टी शर्ट ऐसे फेंक दिए तो करोड़ों रुपए में ऑक्शन होता था उनका टी शर्ट का ऑक्शन करोड़ों रुपया में होता था। और माइकल जैक्सन अगर कोई लड़की को चूम लिए, ऐसे हाथ में अगर चूम लिया, वो लड़की बेहोश, मतलब भगवान चाहे चूम लिए, इस लेवल का माइकल जैक्सन का रेपो था, इस लेवल का। शादी भी 3-4 किए थे और उनका घर जो था 83 एकर्स ऑफ लैंड में था उनका घर। लेकिन माइकल जैक्सन देखिए इस लेवल का रेपो का व्यक्ति, आपको कैसा लग रहा है वो लाइफ कैसा जीता था? कैसा लग रहा है बॉयज लोग? मान लीजिए लड़की को चूमने से वो पागल हो जाते, किस लेवल का रेपो। उसके बाद आपको कैसा लग रहा है? इस टाइप का अगर कोई व्यक्ति है, उनको कभी मरने के लिए इच्छा होगा? एग्जैक्टली। तो माइकल जैक्सन प्लान किया था 200 इयर्स आई विल लिव, 200 इयर्स। लेकिन कितना साल में उनका डेथ हो गया? हाउ मेनी इयर्स ही लिव्ड? जस्ट 50 इयर्स। 50 इयर्स में उनका डेथ हुआ। और देखिए वो व्यक्तित्व जिसके लिए पूरा संसार पागल है, वो व्यक्ति जब डेथ हुआ और उनका जो रिपोर्ट आया, तो रिपोर्ट आने के बाद आप चौंक जाएंगे। जिस व्यक्ति इस लेवल का रेपो क्रिएट किया था, तो उनका लाइफ भी इतना दर्दनाक था। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो रिपोर्ट में आया कि माइकल जैक्सन फ्रॉम लास्ट फ्यू इयर्स ही वाज नॉट टेकिंग फूड, ही वाज ओनली टेकिंग द मेडिसिन ही खाता था। क्यों? क्योंकि एक तो डांस करने के लिए उनको बॉडी फिटिंग ऐसे ही चाहिए, और ऊपर से बहुत सारा हेल्थ कॉम्प्लिकेशन था। और उसके साथ साथ माइकल जैक्सन जहां पे भी इंटरव्यू दिया है, हर जगह में बोलता था आई वॉज एलोन इन माई लाइफ। देखिए व्यक्ति का रेपो किस लेवल का है, और इंटरनली ही इज फीलिंग लोनली।
तो इस हिसाब से देखिए सोसाइटी में हो सकता है वी आर वेरी मच फेमस, हम लोग का पब्लिसिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन इंटरनल फीलिंग इज वेरी डिफिकल्ट, इंटरनल फीलिंग इज डिफरेंट. So that's why in Bhagavad Gita 6.6, that's why in Bhagavad Gita 6.6 Krishna is telling, how many of you repeat after me Bhagavad Gita 6.6? You will repeat after me. I will recite this sloka and after you will repeat. ठीक है, Bhagavad Gita 6.6 we will see what Krishna is telling. बंधुरात्मनस्तस्य, नहीं, ये एससीवी का आवाज नहीं है, एससीवी का आवाज चाहिए. ठीक है, बंधुरात्मनस्तस्य. ठीक है, आप आज लंच में क्या खाए हैं? पोटल, हाँ, पखाड़, पखाड़ सबुठु एनर्जी बेसी, पखाड़ आवाज भारी दरकार. ठीक है जी, बंधुरात्मनस्तस्य, ये हूँ पखाड़ आवाज. बंधुरात्मनस्तस्य जेन आत्मनात्मनैव जिताम् अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तते आत्मनैव शत्रुवत्. कितने बच्चों को अभी समझ में आ गया श्लोक? कितने बच्चों को समझ में आया? ठीक है, कितने बच्चे चाहते हैं इसका मीनिंग हमको पता होना चाहिए? ठीक है, तो मैं अभी श्लोक का मीनिंग बताऊंगा, लेकिन आपको समझना है. ठीक है, इसमें कृष्ण ने कह रहे हैं जिस व्यक्ति का माइंड उनका कंट्रोल में है, तो उनका माइंड उनका बेस्ट फ्रेंड. जिस व्यक्ति का माइंड उनके कंट्रोल में है, वो व्यक्ति का मन उनका दोस्त, फ्रेंड है. और जो व्यक्ति उनका माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाया, उसका माइंड क्या है? एनिमी. तो अभी मैं पूछना चाहता हूं, आपका माइंड आपका फ्रेंड है या दुश्मन? देखिए, संसार का बहुत कुछ चीज हम अचीव कर सकते हैं, संसार का बहुत कुछ चीज हम लोग अचीव कर सकते हैं, लेकिन अगर माइंड कंट्रोल नहीं हुआ ना, अगर माइंड कंट्रोल नहीं हुआ ना, ये आपको कोई भी मोमेंट में गुगली फेंक के आपको बोल्ड आउट कर देगा मेरे दोस्त. कोई भी मोमेंट में आपको गुगली फेंक के आपको बोल्ड आउट कर देगा. और माइंड देखिए, आपका अगर प्रॉब्लम नहीं है, माइंड उसका खुद का प्रॉब्लम क्रिएट करता है. सच है कि नहीं? माइंड उसका खुद का प्रॉब्लम क्रिएट करता है. आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था, आपका टारगेट था कि बस क्लियर करना है, और क्लियर करने के बाद आप बोल सकते कि आपका प्रॉब्लम नहीं है. क्लियर होने के बाद आप बोल सकते हैं आपका प्रॉब्लम नहीं है. इसका मतलब है माइंड उनका खुद का वर्जन का प्रॉब्लम क्रिएट करके आपके सामने देगा. इसका मतलब है माइंड हमेशा आपको जिस लेवल में आप पहुंच रहे हैं, आपको ऐसे ही गुगली फेंकता रहेगा. और माइंड के गुगली के सामने यू विल बी कंप्लीटली बोल्ड आउट. ठीक है, तो इसीलिए देखिए, माइंड को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है. तो इसीलिए मैं पूछना चाहता हूं, जेन्युइन हुई, क्योंकि माइंड का बात जब आता है ना, हाउ मच वी विल बी वेरी एक्सेप्टेंस. हाँ, मेरा माइंड ऐसे ही है, तो उतना ज्यादा हम लोग माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं. तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूं, कितने बच्चे सोच रहे हैं कि आपका माइंड आपका कंट्रोल में है? एवरीवन इज बोल्ड आउट ना. कितने बच्चे सोच रहे हैं आपका माइंड आपका कंट्रोल में है? लेकिन इसमें कोई घबराने की बात नहीं. ये ऐसे भी मत सोचिए मेरा माइंड मेरा कंट्रोल में नहीं, मैं भी प्रयास कर रहा हूं, इसीलिए ही प्रयास कर रहा हूं. ठीक है, तो कोई ऐसे मतलब ये करने का कोई जरूरी नहीं है कि मेरा माइंड, अरे रात को बहुत कुछ सोच आता है, कैसे बताऊं, थोड़ा गलत लगेगा. नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं, आप पूरा ओपनली बोल सकते. कितने बच्चे, लेकिन मैं पूछूंगा नहीं आपका माइंड क्या क्या मतलब आपको ये देता है, लेकिन कितने बच्चे सोच रहे हैं माइंड सच में यार बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है. ठीक है, अभी थोड़ा हम सिचुएशन में जाएंगे और देखेंगे माइंड किस हिसाब से प्रॉब्लम क्रिएट करता है. ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे माइंड कैसा है, माइंड का साइकोलॉजी कैसा है, माइंड को कैसे कंट्रोल करेंगे, इसके बारे में देखेंगे. लेकिन अभी देखिए, माइंड हमारा ये जो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है,
तो अभी देखेंगे हमारा माइंड किस लेवल पे हमारा दुश्मन है। ठीक है, नेक्स्ट। तो अभी जाएंगे माइंड जो है उसका एनिमीज के साइड में कैसे हमको ट्रबल क्रिएट करता है, उसके बाद माइंड। यस, सो एम स्टैंड फॉर मैग्निफाइज द प्रॉब्लम। एम स्टैंड फॉर, ये करता है कि नहीं? प्रॉब्लम अभी ऐसा नहीं है, आप अभी यूजी में है लेकिन चिंता आ रहा है पीजी मिलेगा कि नहीं, और उसके बारे में सोच सोच के आपका ये एग्जाम भी खराब हो रहा है। होता है कि नहीं? सही है कि नहीं? तो ये है कि मैग्निफाइज द प्रॉब्लम। हो सकता है आप जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो उस टाइम में कोई लड़की आपको प्रपोज कर दिया, उसका भी कॉल आता है कि जल्दी जल्दी जब भी कर लो, नहीं तो मेरा शादी और किसी के साथ करेंगे। ये भी प्रेशर, ये होता है कि नहीं? कि प्रॉब्लम्स एक्चुअली बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आप सोच सोच के आपको लग रहा है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि मार्केट में अभी कंपटीशन बहुत ज्यादा है, मुझे ये मिलेगा कि नहीं, होगा कि नहीं, कंपटीशन क्लियर होगा कि नहीं, होता है कि नहीं? सो दिस इज कॉल्ड मैग्निफाइज द प्रॉब्लम। और हमेशा माइंड देखिए, प्रॉब्लम जितना बड़ा नहीं है हमेशा बड़ा कर देता है। ठीक है कि नहीं? कितने बच्चे ये प्रॉब्लम फेस करते हैं? ओ एवरीवन, ओके, ठीक है। नेक्स्ट वी विल गो टू माइंड। आई स्टैंड फॉर इमेजिनेशन। माइंड जितना इमेजिनेशन करता है मेरे दोस्त, रियलिटी में उतना होता ही नहीं। माइंड जितना इमेजिन करता है रियलिटी में उतना होता ही नहीं। आप अभी कौन सा ईयर में है? मैक्सिमम स्टूडेंट आर कमिंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर, राइट? सो व्हेन यू जॉइंड एज फर्स्ट ईयर, आपका कॉलेज आगे क्लास होने वाला है, आप अभी घर में है, तो क्या क्या इमेजिनेशन आया था? क्या क्या इमेजिनेशन आया था? कुछ बच्चे अभी हंसना स्टार्ट कर दिए, तो कैसे कहेंगे वो सब इमेजिनेशन के बारे में? कितना बच्चे? थोड़ा सा मैं लाइट डालता हूं उसके ऊपर। इमेजिनेशन वही आया था कि अभी 15-16 साल हम रगड़ के पढ़े हैं, लाइफ हम बस पढ़ाई में दिए हैं, मेडिकल जाने के बाद हम एकदम फुल एंजॉय करेंगे। हम जाएंगे इंडक्शन प्रोग्राम में, इंडक्शन प्रोग्राम में हम जाएंगे, हम उस साइड बैठेंगे और उस साइड देखेंगे एक सुंदर सा लड़की, सुंदर सा लड़की, बाल एकदम स्ट्रेटनिंग है, लिपस्टिक एकदम सुंदर सा लड़की। उसके बाद आप क्या करेंगे? उसका नाम पूछने के लिए ट्राई करेंगे। पूछ तो नहीं सकते, थोड़ा पूछेंगे इससे उससे कि क्या नाम है। उसके बाद पता चला इनका नाम है जस्मिन। क्या खुशबूदार नाम है यार, वो क्या खुशबूदार नाम है। और उसके बाद नाम भी पता चल गया, अभी उसका नाम है जस्मिन। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये एक्सपीरियंस का आवाज है। यस, एक्सपीरियंस का आवाज है। यस, नेक्स्ट स्टेप क्या क्या? इंस्टाग्राम ना, पक्का देखिए, एक्सपीरियंस। यस, इंस्टाग्राम मिल गया। उसके बाद व्हाट्सएप, ओके, व्हाट्सएप भी मिल गया। नेक्स्ट चैटिंग हो रहा है ना, ठीक है। चैटिंग होने के बाद फिर नेक्स्ट क्या फाइनल होगा? हाँ सॉरी, यस, स्टार्टिंग हो गया। उसके बाद प्रोफेशनलिज्म, उसके बाद आपका अभी चैटिंग अभी चल रहा है, बढ़िया, क्या है, ये है, वो है। उसके बाद नेक्स्ट डेटिंग ना, डेटिंग कहाँ जाएंगे? डेटिंग जोबरा। इसका मतलब है आप अकेले हैं। इसका मतलब है लड़का अगर फास्ट डेटिंग में कोई लड़की को बोलता है कि जोबरा जाएंगे, लड़की को पता चल गया इससे छोटा और कोई नहीं है। क्योंकि फास्ट डेटिंग में कोई नदी के किनारे, जंगल के अंदर लड़की को पता चल गया कि इससे डेस्परेट और कोई नहीं है, और उसके बाद आपका नंबर हो जाएगा ब्लॉक, और आप परेशान है ब्लॉक क्यों हो गया। धीरे धीरे भाई, धीरे धीरे। नेक्स्ट क्या होगा? जो एक्सपीरियंस से बता सकते हैं। कहां जाएंगे? कहां जाएंगे? मॉल जाएंगे। और उसके बाद सेटिंग हो गया, डेट भी फिक्स हो गया। और मैं कह रहा हूं, आपका जब फर्स्ट डेटिंग फाइनल होगा ना, आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर होता है जितना खुशी नहीं, और इसमें ज्यादा खुशी आएगा। और डेटिंग का फाइनल हो गया, संडे जाएंगे। 2-3 दिन से आप एकदम बेताब हो रहे हैं, जाएंगे। संडे का टाइम आ गया, 12 बजे आप कॉल करेंगे, हम लोग जाएंगे। तो लड़की देखिए बोलेगा कि मेरा थोड़ा हेल्थ थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। नहीं तुम चलो, अच्छा लगेगा यार, घूम के आ जाने के बाद अच्छा लगेगा। अरे पढ़ाई करने के लिए बहुत कुछ है। अरे ठीक है, हम भी मैं समझा देंगे आपको, बहुत टेंशन लेने का कोई जरूरी नहीं, ठीक है। तो उसके बाद शाम को आप जा रहे हैं, कोई भी मॉल में जाइए,
कोई भी मॉल में जाने के बाद आप देखिए, मॉल में एंट्री करते करते इतना रोमांटिक स्मेल आता है, इतना रोमांटिक स्मेल आता है, आपका एकदम मूड सेट हो गया। और उसके बाद आप जब जा रहे हैं, क्या सोच के जा रहे हैं, और ये सब इमेजिनेशन में चल रहा है, ये सब इमेजिनेशन में चल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आप जा रहे हैं, लड़की भी साथ जा रहे हैं, तो क्या इमेजिनेशन आएगा? एग्जैक्टली, हाथ पकड़ लो, हाथ उनका पकड़ लो। लेकिन फास्ट डेटिंग है, हाथ पकड़ने के लिए डर लग रहा है, इसलिए मॉल में जाएंगे। आप मॉल में कहा जाएंगे? कोई केएफसी या कोई रेस्टोरेंट में। और हमेशा देखिए, रेस्टोरेंट कौन सा फ्लोर में होता है? कौन सा फ्लोर में? टॉप। तो अभी जाते 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 आप जाके पहुंच गए एस्केलेटर के पास। अभी लड़की बोल रही है, मुझे थोड़ा डर लग रहा है, मेरा हाथ पकड़ लोगे क्या? आपको लगेगा तो भगवान दिया तो दिया, ये तो छप्पर फाड़ के दे दिया भाई, ये तो छप्पर फाड़ के दे दिया। उसके बाद आप गए ऊपर, अभी आप बैठ के बात कर रहे हैं, थोड़ा आप भी शर्मा रहे हैं, वो भी शर्मा रहे। और इस मोमेंट में आप देखेंगे, कोई भी कैफेटेरिया में जाके बैठेंगे, कोई शॉपिंग मॉल में, कौन सा गाना चलता है? कौन सा गाना चलता है? क्योंकि तुम ही हो। कितना रोमांटिक है ना ये सब। और उसके बाद जब पूरा हो गया, उसके बाद खाना पीना हो गया, उसके बाद आप आ रहे हैं, तो आने के वक्त लड़का बहुत चिंतित है। किस लिए चिंतित है? किस लिए चिंतित है? सॉरी, किस लिए चिंतित है? बिल है ना, बिल तो दे दिया, अभी बिल का कोई टेंशन नहीं है, ये कितना भी पैसा खर्च हो जाए बहुत टेंशन का बात नहीं है, पूरा वर्दी होता है। उसके बाद आप आ रहे, अभी माइंड में ये आ रहा है कि प्रपोज कर दूं या नहीं, क्योंकि सब कुछ तो अभी खाना पीना सब कुछ हो गया, प्रपोज कर देना चाहिए। तो आते 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 आप एकदम गर्ल्स लेडीज हॉस्टल के गेट के सामने हो गए, लड़की अभी जाने वाली है। तो अभी पूछ रहा है, राहुल तुम थोड़ा चिंतित लग रहे हो, क्या बात है? तो अभी लगेगा ठीक है, मुझे थोड़ा ऐसा ऐसा ऐसे करते 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 फाइनल टाइम आपको लगेगा बोल दो यार। तो उसके बाद आप बोल दिए, आप बोल दिए कि मेरा कुछ फीलिंग्स है, ये है वो है जो भी है। तो उसके बाद लड़की का क्या रिएक्शन आती है? मेरे दोस्त, ये इतिहास गवाह है, ये इतिहास गवाह है, लड़की वही बोलेगा, राहुल मैं तुम्हें अच्छा दोस्त ही मानता हूं। लड़की कभी नहीं बोलेगी कि हाँ। और ये जो लड़की लोगों का पेशेंस और लड़का लोगों का डेस्परेशन हमेशा उनके पीछे भागने के लिए मजबूर कर देता है, हमेशा उनके पीछे भागने के लिए मजबूर कर देता है। तो इसीलिए देखिए, इमेजिनेशन इज वेरी स्वीट माय डियर फ्रेंड्स, इमेजिनेशन बहुत स्वीट होता है। और देखिए, कॉलेज में ना दो टाइप के लड़के बहुत खुश है, कॉलेज में दो टाइप का लड़के बहुत खुश है। जिसका गर्लफ्रेंड है वो बहुत खुश है, वो आते आते ही एक हफ्ते में उनका सेटिंग, वो आते आते उनका एक हफ्ते में उनका सेटिंग। इसीलिए कहते हैं ये लड़के बहुत शातिर होते हैं। नजरों से नजरें मिली, नजरों से नजरें मिली, पहली मुलाकात में दोनों रहे खामोश लेकिन बात बन गए। ये इस लेवल का ये है, ठीक है। और एक कैटेगरी है, और एक कैटेगरी है जिसको गर्लफ्रेंड बनाना नहीं है, लाइब्रेरी जाते हैं धूम पढ़ते हैं। ये कौन कौन है जिसको गर्लफ्रेंड बनाना नहीं है? सब है भाई, इधर सब है। लेकिन एटलीस्ट आप जेन्युइन है, मैं बहुत खुश होता हूं आपसे। लेकिन तीसरा कैटेगरी आता है, उनको गर्लफ्रेंड चाहिए, मिलता नहीं, गर्लफ्रेंड चाहिए, मिलता नहीं। हर जगह में ट्राई कर लेंगे, इंस्टाग्राम में ट्राई, फेसबुक में ट्राई, कॉलेज में अगर थोड़ा कम है तो नॉर्थ सेक्शन में भी ट्राई कर लेंगे, घर जा रहे दुर्गा पूजा छुट्टी में बस में भी थोड़ा बहुत ट्राई कर लेंगे। तो ये है तीसरा कैटेगरी। और चौथा कैटेगरी आता है भाई कैटेगरी, वो हमेशा भाई रहेंगे, मतलब बातचीत ये सब। तो इनका जो प्लान है ना, ये थोड़ा म्यूचुअल फंड जैसा है, इन्वेस्टमेंट, इनका रिस्क कम और रिटर्न हमेशा आता रहेगा। आप देखेंगे जो भाई है, लड़की का ब्रेकअप हो गया, ये उनके सर में मतलब सर दे के बात कर रहे हैं कि ऐसा हो गया ऐसा हो गया, थोड़ा कंसोल कर रहे हैं। आपको लगे भाई ये तो बहुत हाई लेवल के कैटेगरी में एंजॉय कर रहा है। लेकिन मैं कहता हूं, देखिए, इमेजिनेशन इज वेरी स्वीट, इमेजिनेशन इज वेरी स्वीट। बहुत लड़कों को ऐसा लगता है जिसका गर्लफ्रेंड है बहुत एंजॉय कर रहा है, सही है कि नहीं? कितने लड़कों का गर्लफ्रेंड है ही नहीं? ओ
लेकिन बाद में ये मत पूछना प्रभु जी थोड़ा सेटिंग करके जाइए आए तो, ये मत पूछिए। लेकिन ठीक है, मैक्सिमम टाइम में क्या होता है, किसी का अगर गर्लफ्रेंड नहीं है तो काफी इंफीरियर लगता है, कितना दिन पढ़ाई किए मिला नहीं, ये नहीं। लेकिन देखिए सबका लाइफ में स्ट्रगल है। जिसका गर्लफ्रेंड है देखिए उनका भी स्ट्रगल बहुत ज्यादा है। आप देखिए जिसका गर्लफ्रेंड नहीं, आप आराम से आप पढ़ सकते हैं, रात को 10 बजे सो सकते हैं, 11 बजे सो सकते हैं, 12 बजे सो सकते हैं। जिसका गर्लफ्रेंड है रात को 1 बजे तक उनको बात करना ही पड़ेगा, उनको करना ही पड़ेगा। संडे को आप आराम से आप पढ़ सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, कहां पे प्रोग्राम अटेंड करने के लिए जा सकते हैं। लेकिन जिसका गर्लफ्रेंड है 2 या 3 बजे लड़की का कॉल आएगा, हम लोग बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं क्या, तो लड़का बोलेगा काफी टायर्ड लग रहा है, इतना लाभ ये सब अटेंड करने के बाद। लड़की बोलेगा तुम्हें तो हमेशा ही टायर्ड लगता है, तुम्हें हमेशा ही टायर्ड लगता है, ठीक है तुम रेस्ट लो, लेकिन मैं शुभम के साथ जाता हूं घूमने के लिए। और ये सुनने के बाद उनका 10 दिन का नींद हराम हो जाएगा, उनका 10 दिन का नींद हराम हो जाएगा। तो इसीलिए देखिए इमेजिनेशन इज वेरी स्वीट। इवन इफ आप अभी सिंगल है, you are thinking that you will be in relationship, you are thinking that in future you will marry, but despite of all these things my dear friends, everyone is looking for happiness, but this world is designed in a such a way that the imagination is very sweet, imagination is very sweet। reality में उतना है ही नहीं। आपको लग रहा है एक बार पास आउट हो जाने के बाद लाइफ को एकदम फुल एंजॉय करेंगे, लेकिन जो पास आउट हो गए उनको पूछिए। तो इसीलिए इमेजिनेशन इज वेरी स्वीट एंड दिस माइंड ऑलवेज एम्फसाइज ऑन द इमेजिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज नेग्लेक्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। किसको किसको फील होता है कि जो रेस्पॉन्सिबिलिटी जिस टाइम में लेना चाहिए हम मोबाइल घुमा रहे हैं, कल एग्जाम है, पता सब है, लेकिन फिर भी कल असाइनमेंट सबमिट करना था या परसों असाइनमेंट सबमिट करना था, तो लग रहा है हाँ है तो देंगे, करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करते करते आपका एग्जाम का या लास्ट सबमिशन का डेट आ गया। उसके जाके टीचर को बोल रहे हैं मेरा तबीयत खराब हो गया था। कौन कौन ऐसे करते हैं? सब। वाह, ठीक है। उसके बाद जाएंगे डिस्ट्रैक्शन। नेक्स्ट, डी स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रैक्शन। कौन कौन है यू फील दैट यू आर डिस्ट्रैक्टेड? तो देखिए द मोस्ट डिस्ट्रैक्टेड एलिमेंट इन दिस यूनिवर्स, हु इज द मोस्ट डिस्ट्रैक्टेड एलिमेंट इन दिस यूनिवर्स? सॉरी सोशल इंस्टाग्राम रील्स नहीं, मैं बोल रहा हूं लिविंग एंटिटी, कोई लिविंग गर्ल्स। लड़का लोग हमेशा बोलते हैं गर्ल्स, लेकिन उसके पीछे क्यों भाग रहे हो फिर? ठीक है ना। तो सबसे सब बोलते हैं, हर कॉलेज में जाता हो तो लड़का लोग बोलते हैं लड़की, लेकिन आप क्यों फिर भाग रहे हो? वो तो भागते नहीं, वो एकदम स्टेबल रहते हैं। ठीक है, तो सबसे मोस्ट डिस्ट्रैक्टेड एलिमेंट कौन है? 2017 till 2017 मोस्ट डिस्ट्रैक्टेड एलिमेंट वाज गोल्डफिश। गोल्डफिश सबसे डिस्ट्रैक्टेड। ये कोई भी चीज पे ना 9 सेकेंड तक ध्यान लगा पाती थी। ठीक है, 9 सेकेंड। 2017 के बाद एक स्पेसिस उनको क्रॉस कर गया। कौन है? बॉयज। बहुत जेन्युइन है। आपका नाम क्या है? ठीक है, बेटा। तो ये 2017 के बाद एक स्पेसिस उनको क्रॉस कर गया। ये कौन है? ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग उनको क्रॉस कर गया। और अभी हमारा जो कोई भी चीज पे हम लोग फोकस अगर कर सकते हैं 7 सेकेंड, 7 सेकेंड, उससे ज्यादा नहीं। कितना गर्व का बात है ना। हम हर चीज में आगे रहेंगे, हम हर चीज में आगे रहेंगे। ये 7 सेकेंड तक कोई भी चीज में हम लोग फोकस कर सकते हैं। तो ये है डिस्ट्रैक्शन। और डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा कारण क्या है? डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा कारण आपका दोस्त। आपका दोस्त कौन है? पे टी करता रहता है ना, तो ही हर 7 सेकेंड में डिस्ट्रैक्टेड। मोबाइल में देखिए कुछ आया कि नहीं आया, लेकिन हम हमेशा टू करते रहते हैं। सब मोबाइल के यूज में परेशान है कि नहीं? सब परेशान है। तो इसीलिए देखिए हम जितने भी फैक्टर्स देखें, आपको लग रहा है ना आपका माइंड आपके साथ कितना प्रॉब्लम क्रिएट
करता रहता है। तो इसके साथ हम लोग को लग रहा है ये माइंड को हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे? लग रहा है? नहीं लग रहा है कंट्रोल कर पाएंगे? नहीं, होपलेस। ठीक है, हम लोग थोड़ा बहुत श्लोक ये देखेंगे तो हम लोग जाएंगे, फिर उसके बाद माइंड कंट्रोल कैसे करेंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक बहुत बढ़िया एनालिसिस दिया गया है। आप देखिए, ये जो फर्स्ट इमेज है ना, इसमें आप क्या देख रहे हैं? एक इंसेक्ट है जो एक्चुअली जब लाइट को दिखता है ना तो उसके तरफ जाता है और उसके बाद उनका डेथ होता है। ठीक है, मतलब वो जो इंद्रिय है ना उसको कंट्रोल नहीं कर पाता। नेक्स्ट वन इज फिश। फिश क्या करता है? क्या करता है? आप बोल रहे हैं हाँ वो कुछ नहीं करता, हम खा जाते हैं उनको। ठीक है, फिश क्या करता है? वो एक्चुअली कुछ खाने के लिए आता है और उससे ही पकड़ जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये जो चीज उनका बेसिक नीड है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जाते हैं, यहाँ पे एक हनी बी। तो हनी बी जो है, फूल का जो स्मेल है ना उसके तरफ आकर्षित होता है और फूल के अंदर दब जाता है और उसके बाद उनका डेथ। उसके बाद आता है कि ये जो हिरन, तो हिरन क्या है, अगर कुछ अच्छा साउंड सुनता है तो उनके पीछे इतना पागल हो जाता है तो उसके बाद उससे ही उनका मर जाता है। और नेक्स्ट वन इज एलिफेंट। एलिफेंट का इतना, मतलब फीमेल एलिफेंट के लिए इतना आकर्षण है, उनको जब पकड़ते हैं ना तो क्या करते हैं, एक फीमेल एलिफेंट को रखते हैं ऐसे, मतलब गड्ढा खो देते हैं और ये इतना जोर से दौड़ के आता है, उससे गिरता है और उसके बाद उनको 3-4 दिन तक खाना नहीं देते हैं और उसके बाद उनको पकड़ के लेके आते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात देखिए, जितना भी लिविंग एंटिटी का हम बात कह रहे हैं, ओनली वन सेंस वाज वेरी uncontrolled, so that's why they given their life. But human being, how many senses are uncontrolled? How many senses are uncontrolled? 5 senses are uncontrolled. इसका मतलब देखिए, आपका 5, अगर गर्लफ्रेंड बनाए उनका भी 5, शादी करने के बाद फिर बच्चा होगा उनका भी 5, फिर और एक बच्चा होगा तो उनका भी 5। कोई कोई बोल रहे 2 में हम संतुष्ट नहीं होंगे, थोड़ा ज्यादा करेंगे। ठीक है, तो उनका भी 5 होगा। तो देखिए, लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए देखिए, भगवान ने भगवत गीता श्लोक में क्या कह रहे हैं, तो कह रहे हैं एहि संस्पर्श जब होगा। प्लीज कैन यू रिपीट आफ्टर मी? ओके, एहि संस्पर्श जब होगा दुखा जो नाए बते आद्यंतवंत कंतेय न ते सूरमते बुधा। इसका मतलब यह है, यही संस्पर्श जब होगा, this senses when comes in the contact of sense object, so it feels like I will enjoy these all things. ठीक है, जब इंद्रिय के संस्पर्श में आते हैं तो इनको भोग करने के लिए चाहते हैं, लेकिन ये जो भोग है इस किस टाइप का भोग है ना, यही संस्पर्श जब होगा दुखा जो नहीं बते, दिस इज द कॉज ऑफ सफरिंग, दिस इज द कॉज ऑफ सफरिंग एंड एवरी हैप्पीनेस हैविंग द अद्यंत बंत कंतेय, हैविंग द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंड पॉइंट। एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंड पॉइंट है, और ये अर्जुन यही ही दुख का कारण है। और उसके बाद क्या आप बोल रहे हैं, न तेसु रमते बुधा, द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल विल नॉट बी इन्वॉल्व इन दिस ऑल थिंग्स। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप जब कॉलेज में, कोई हो सकता है कोई लड़का हो या लड़की हो, आप सुंदर सा एक लड़की को देखने के बाद क्या फील आता है कि इनको कोई नंबर ले लो, फ्रेंडशिप करो, ये करो। तो इसीलिए कहते हैं स्टार्टिंग में आप जब डेटिंग कर रहे हैं कोई लड़की को, वो किस टाइप का दिखती है, चंद्रमुखी। स्टार्टिंग में दिखती है चंद्रमुखी, 6 महीना उनको डेटिंग करने के बाद सूर्यमुखी, और उनको शादी कर लिए तो अभी कैसे दिखेगी, ज्वालामुखी। तो यही होता है। तो इसीलिए कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति है, इस चीज में बहुत ज्यादा भागना नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट श्लोक में जाएंगे। तो ये कैसे होता है ना, धायते विषानुपम सा संगस्ते सुपजायते संगत संजायते काम
कामात क्रोध विजायते. When we think about the sense object, so after that we get the attachment. We get the attachment. और attachment आने के बाद फिर हम लोग क्या होता है, इतना आसक्त हो जाते हैं कि हम लोग somehow और others उनको ही अचीव करना लगता है. और अगर अचीव कर लिए ये भी दुख है, और अचीव अगर नहीं हुआ ये भी दुख है. तो इसीलिए देखिए, तो ये जो सेंस ऑब्जेक्ट है ना, उससे जितना आप विरक्त रहेंगे उतना अच्छा है. अभी नहीं कह रहा हूं कि एकदम जीरो पोजीशन में आ जाए. कुछ चीज जरूरतें हैं, लेकिन कुछ चीज जो जरूरत नहीं है उसके पीछे भागने का कोई जरूरत नहीं है. तो इसीलिए हम लोग जाएंगे, अभी देखेंगे. अभी कितने बच्चों को अभी हम जाएंगे कि माइंड कैसे कंट्रोल करना है. सो हाउ मेनी यू थिंक दैट आई वांट टू नो दिस थिंग, हाउ आई कैन कंट्रोल माय माइंड. ठीक है, तो अभी हम देखेंगे माइंड के पॉजिटिव साइड में. और पॉजिटिव साइड जो है ओनली जानने से नहीं होगा, यू नीड टू प्रैक्टिस. सो हाउ मेनी ऑफ यू एग्रीड दैट आई विल प्रैक्टिस. ठीक है, इनका थोड़ा फोटो ले लीजिए क्योंकि आगे जाके प्रैक्टिस करेंगे ही नहीं. तो ठीक है, नेक्स्ट अभी जाएंगे हम क्या क्या प्रैक्टिस करना है जिससे हमारा माइंड कंट्रोल होगा. ठीक है, नेक्स्ट तो डायरेक्टली नेक्स्ट जाइए. नेक्स्ट यस, नेक्स्ट यस. एम स्टैंड फॉर. कौन कौन मेडिटेशन करते हैं? क्या मेडिटेशन करते हैं? हाँ, सोने को मेडिटेशन नहीं कहते. सोने को मेडिटेशन नहीं कहते. कौन कौन मेडिटेशन करते हैं? अच्छा, क्या मेडिटेशन आप करते हैं? सॉरी, ब्रीदिंग ब्रीथ आउट करते हैं. और ब्रीदिंग ब्रीथ आउट करते हैं. और किस पे ध्यान देते हैं? बिंदु, पिता माता को. अच्छा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, ये है मेडिटेशन. ठीक है, तो कौन कौन है मेडिटेशन प्रोसेस क्या है जानना चाहते हैं कि हम लोग भी मेडिटेशन एटलीस्ट. देखिए, आप बिजी शेड्यूल है, एटलीस्ट 10 मिनट 15 मिनट आई जस्ट वांट टू नो, एंड आफ्टर दैट आई वांट टू प्रैक्टिस. सो हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट जस्ट 10-15 मिनट्स आई विल प्रैक्टिस, एंड टुडे इन द सेशन आई वांट टू नो. हाउ मेनी ऑफ यू? ठीक है, हम लोग इसको सेशन के एंड में रखेंगे क्या मेडिटेशन कैसे करना है. नेक्स्ट आई स्टैंड फॉर improve the intelligence. आप किस चीज को इंटेलिजेंस मानते हैं? आपके सब्जेक्ट को पढ़ाई करना है, ये सब चीज को बहुत इंटेलिजेंस मानते हैं. डेफिनेटली ये इंटेलिजेंस है, लेकिन आप देखिए पास आउट होने के बाद ऐसा सिचुएशन देखेंगे, ऐसा रिवर्स सिचुएशन आप देखेंगे, जब व्यक्ति कोई ऐसा है जो अच्छा सिचुएशन को भी हैंडल कर लेता है और खराब सिचुएशन को भी हैंडल कर लेता है, तब भी वो व्यक्ति को बुद्धिमान कहेंगे. ठीक है, मार्क्स सिक्योर करना, कॉलेज में टॉप रहना, ये बहुत बुद्धिमान का बात नहीं. क्योंकि हम लोग देख लिए पहले स्लाइड में, एम्स में जाने के बाद थोड़ा बहुत इधर उधर आया, उसके बाद हरि बोल सत्य है, हरिनाम सत्य कर लिए, तो इसको क्या बुद्धिमान बात कहेंगे? आईआईटी दिल्ली में 2018 में एक व्यक्ति सुसाइड किया, फाइनल ईयर के स्टूडेंट. उनका नोट्स में लिखा था, आई वॉज इन द फाइनल ईयर, मेनी कंपनीज वेर कमिंग फॉर रिक्रूटमेंट, आई वॉज नॉट गेटिंग सिलेक्टेड, सो दैट्स व्हाई आई एम थिंकिंग यूजलेस. मुझे लग रहा है मैं यूजलेस हूं, तो मुझे यहाँ पे जीने का कोई अच्छा नहीं लग रहा है. तो इसको बोलेंगे इंटेलिजेंस. आईआईटी हैदराबाद के स्टूडेंट थे, तो इसको बोलेंगे इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस वही व्यक्ति है जो अच्छा सिचुएशन और बुरा सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं. सही है कि नहीं? तो ये कहां से आएगा? सॉरी, फ्रॉम एक्सपीरियंस. ठीक है, और कुछ? लेकिन एक्सपीरियंस तो बहुत कुछ करना पड़ेगा ना, समझ रहे ना, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस करने के लिए उतना टाइम भी नहीं है. ठीक है, ये इंटेलिजेंस आएगा बाय रीडिंग द स्क्रिप्चर्स. बाय रीडिंग द स्क्रिप्चर. हाउ मेनी ऑफ यू रीड भगवत गीता? ओनली फ्यू. यू सी, तो हम लोग देखिए भगवत गीता वो पढ़ते नहीं. और भगवत गीता एक ऐसा चीज आप देखिए, अर्जुन हु वाज फीलिंग डिप्रेस्ड कि मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, और वही अर्जुन आफ्टर हियरिंग भगवत गीता 18 चैप्टर में अर्जुन ने कह रहे
नष्ट मोह स्तुति लब्ध्वा तत्प्रसाद अच्युतेज्य स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। तो कह रहे जो अर्जुन कह रहे मैं युद्ध करने के लिए अभी लायक नहीं रहा, वही अर्जुन ने कह रहे हैं कि नष्ट मोह स्तुति लब्ध्वा, नष्ट मोह जितना अटैचमेंट है ना, मोह मेरा चला गया, नष्ट मोह सब नष्ट हो गया, नष्ट मोह स्तुति लब्ध्वा, मैं मेरा जो स्तुति अभी रिगेन कर लिया, नष्ट मोह स्तुति लब्ध्वा तत्प्रसाद अच्युतज्य, है अच्युत आफ्टर गेनिंग योर प्रसाद, गेनिंग योर नॉलेज, आई गॉट माई all this knowledge, करिष्ये वचनम तव, whatever you will tell I am ready to do। वही जो व्यक्ति कह रहे थे मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, अभी देखिए किस लेवल का बाउंस बैक करके आए और महाभारत युद्ध जीत के जीत गए। तो इसीलिए देखिए व्यक्ति जीवन में अगर कभी नेगेटिव सिचुएशन आता है ना, इसीलिए बिकॉज वी डोंट नो द रियल नॉलेज, We don't know the real knowledge। तो इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है, you are the most talented student, just 5 minutes you just spend in every day। I am just telling you today that after 5 years you will be leader, after 5 years you will be leader। क्योंकि भगवत गीता कोई पढ़ते नहीं, भगवत गीता कोई पढ़ते नहीं, तो इसीलिए आप अगर पढ़ रहे हैं तो सोसाइटी में आप लीडर होके बाहर निकलेंगे। डॉक्टर तो हो जाएंगे लेकिन इंद्रिय का आप कंट्रोल में रहते हैं, इनके कंट्रोल में, उनके कंट्रोल, तो क्या फायदा है, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए भगवत गीता को 5 मिनट एटलीस्ट पढ़िए। आप अगर नहीं पढ़ेंगे, इतना इंटेलिजेंट व्यक्तित्व होने के बाद आप नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा भाई, कौन पढ़ेगा। नहीं लग रहा है ये पढ़ना चाहिए। कितना बुक्स आप रट्टा मार देते, बायोलॉजी पढ़ते हैं, ये पढ़ते, वो पढ़ते, वो पढ़ते, वो पढ़ते, वो पढ़ते, और थोड़ा प्रॉब्लम आने के बाद सब खत्म हो जाता है। लेकिन ये एक बार पढ़िए ना, पढ़ेंगे कि नहीं, फिर भी बोल रहे नहीं पढ़ेंगे, मतलब किस लेवल का देखिए कि मतलब अटैचमेंट है, हम पढ़ेंगे ही नहीं, कुछ कर लो नहीं। थोड़ा रिक्वेस्ट में करता, आप 5 मिनट पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट जाएंगे प्रभु, नेक्स्ट लोग, यस। सो नो फॉर बैड हैबिट्स, नो फॉर बैड हैबिट्स। दो चीज हो सकता है, आप ऑलरेडी बैड हैबिट्स में एडिक्टेड हो गए, दूसरा चीज हो सकता है आप बैड हैबिट्स में जाइए नहीं, क्योंकि ये कॉलेज के टाइम में बहुत हाइप क्रिएट होता है, बहुत हाइप क्रिएट होता है। अरे डॉक्टर है यार, लगा अजीब, अभी थोड़ा ले सिगरेट ले, ये ले, वो ले, तो बैड हैबिट्स भी काफी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मैं एक बात बताता हूँ, तो एक यूट्यूबर है, उन्होंने बता रहे थे मतलब उनका पास्ट का एक एक्सपीरियंस। तो उनका एक दोस्त है, काफी टैलेंटेड एक्टर थे स्कूल के टाइम में, ठीक है। उनका जब पास आउट हो गए तो उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े, उनके साथ और एक दोस्त के साथ मुलाकात हुआ। तो मुलाकात के टाइम में उन्होंने पूछे कि वो जो फ्रेंड इतना काफी टैलेंटेड एक्टर थे, तो अभी तो बॉलीवुड में होंगे, तो अभी उनका क्या लाइफ चल रहा है। तो उन्होंने बोले आपको पता नहीं क्या उनके साथ क्या होगा। तो बोले क्या हुआ, तो बोले कि वो अभी जेल में है। तो अभी जेल में है, तो फिर पूछे कि ऐसे क्या हुआ था। वो बोले कि देखिए वो कॉलेज में जाने के बाद कुछ बुरा संगत में चले गए और धीरे धीरे नशा करने लगे, और उसके साथ साथ ड्रग्स का एडिक्शन हो गया। तो उनका ड्रग्स का एडिक्शन हो गया। तो ड्रग्स का जब एडिक्शन हो गया, तो घर में जब आते थे या घर के हमेशा पैसा का डिमांड करते थे, पैसा चाहिए पैसा चाहिए, तो हमेशा उनके पेरेंट्स के साथ काफी बहस चल रहा था। तो एक दिन घर में आए थे और पेरेंट्स के साथ इतना झगड़ा हुआ, इतना झगड़ा हुआ, उसके दिन नेक्स्ट दिन को उनके घर में 6 सदस्य थे, सब डेथ हो गया था। और डेथ का कारण ये था, वो व्यक्ति इतने नशे में थे और इतने गुस्से में थे, तो खाने में जहर मिला दिए, और 6 व्यक्ति का डेथ हो गया। और एक व्यक्ति उस दिन खाना नहीं खाए थे, कुछ पार्टी में गए थे, और वो आने के बाद उनका गला काट के मार दिए। तो ये है परिणाम। हमको लग रहा है थोड़ा मजा चल रहा है, मजा चल रहा है, मजा चल रहा है, लेकिन मजा का देखिए एंड क्या हो सकता है। तो इसीलिए रिस्क मत लीजिए। और नाउ डेज हाइप इज दैट, आप देखिए कोई भी मूवीज ये सब वगैरह देखिए, तो मूवीज एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री इज फोकसिंग दैट हाउ वी विल मेक श्योर दैट गर्ल्स विल स्मोक सिगरेट। अगर लड़की लोग सिगरेट फूकना स्टार्ट कर दिए, तो लड़का लोगों को फिर मना करने के लिए कोई नहीं है, और लड़का लोग खिंचते होके जाके सिगरेट फूकेंगे।
तो इंडस्ट्री अभी देखिए जितना एडवर्टाइजमेंट है, जितना भी मूवीज, वेब सीरीज, दे आर फोकसिंग दैट गर्ल्स आर स्मोकिंग। आप देखिए एक मूवी था, मतलब एक दो बहन बात कर रहे हैं, शादी का माहौल है, तो बड़े बहन ने ऐसे स्मोक कर रहा है। आप कभी गांव में देखें, कभी ऐसा होता है? मतलब ये मूवी वाले इतना मतलब दिमाग को खराब करते रहते हैं, दिमाग को ऐसे खराब करते रहते हैं, तो उनका मेन फोकस है कैसे बच्चे ज्यादा इस चीज में इन्वॉल्व हो गए। तो इसीलिए देखिए, अगर बैड हैबिट्स ऑलरेडी स्टार्ट हो गया तो इसका डिफरेंट प्रोसेस है, हम लोग बात करेंगे कैसे हो सकता है। अगर नहीं हुआ तो कभी भी इसमें मत जाइए, ये सब हाइप है, ये सब करने में मजा आता है। किसी को मजा नहीं आया, किसी को मजा नहीं आया कि आगे आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट, डी स्टैंड्स फॉर डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन में भगवत गीता में भगवान कह रहे जुक्ताहार विहारस्य जुक्त चेष्टस्य कर्मसु जुक्त स्वप्न बोधस्य जुक्त कर्मसु। तो कह रहे जुक्त आहार, आपका फूड में डिसिप्लिन चाहिए, ठीक है, फूड में डिसिप्लिन चाहिए। जुक्त आहार विहारस्य, विहार किस चीज में आप विहार ज्यादा करते हैं? आपका जो रोमिंग सबसे ज्यादा किस चीज में होता है? इंटरनेट में। तो उसमें भी थोड़ा लगाम लगाइए, रात को इधर उधर मत जाइए ज्यादा चीज में, ठीक है। थोड़ा लगाम लगाइए, पढ़ने का चीज, कुछ जानने का चीज, ठीक है, लेकिन और ज्यादा कुछ चीज में इन्वॉल्व मत होइए। जुक्त आहार विहारस्य जुक्त चेष्टस्य कर्मसु, आपका जो एक्टिविटी, सोने का हैबिट, उठने का हैबिट, इस चीज में थोड़ा डिसिप्लिन लाइए। कितने बच्चे हैं जो सुबह उठ जाते हैं? और किस टाइम को आप सुबह मानते हैं? किस टाइम को सुबह मानते हैं? हम एक्चुअली एक यूथ सेशन करने वाले थे, हम पटिया में रहते हैं, आपको पता है उसमें कौन सा सबसे खतरनाक कॉलेज है उधर। तो हम लोग ऐसे बच्चों को पूछे कि आप सुबह कितना बजे उठ जाते हैं? बोले प्रभु जी हम 2 बजे तक उठ जाते हैं। 2 बजे तक उठ जाते हैं। और पूछा कि कितना बजे सो जाते हैं? तो बोले 5 बजे तक हम सो जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चे 5 बजे कौन कौन है उठ जाते हैं? उससे पहले 4 बजे तक कितना उठ जाते हैं? 4 नहीं, और ठीक है 5 बजे, 5 बजे आप उठ जाते हैं। और कौन? आप उठ जाते हैं। और कौन? आप उठ जाते हैं, ठीक है। 6 बजे एटलीस्ट कौन कौन उठ जाते हैं? 6 बजे आप उठ जाते हैं। 7 बजे तक? 8 बजे? कौन कौन उठता ही नहीं? उठता ही नहीं हो, उसका मन, मतलब भालू भी आजकल बहुत जल्दी उठ जाता है भाई, भालू भी उठ जाता है सुबह सुबह, लेकिन बच्चे सोते रहते हैं 10 बजे तक। और ये जो आप बोल रहे हैं मैं सुबह उठ जाता हूँ, मतलब क्लास के दिन या संडे को? क्लास के दिन। तो संडे कितना बजे उठते हैं? सर जी कितना बजे उठ जाते हैं आप? अब अभी तो लग रहे सोए सोए तक। कितना बजे उठ जाते हैं संडे के दिन? 12। संडे दिन कितना बजे उठ जाते हैं आप? 10:30। पूरा रिकॉर्ड तोड़ने के लिए है ना, ठीक है। तो इसीलिए देखिए ये जो सोने का और उठने का हैबिट थोड़ा बनाए। आज के सबसे जो मेंटल रिलेटेड इशू सबसे मैटर करता है आपका लेट उठने का बजाय, ठीक है। और पूरा आप देखिए देश अभी कोई अभी सुबह नहीं उठता है, कोई अभी सुबह नहीं उठ रहा है। तो और मैं कह रहा हूं आप अगर 5 बजे या 6 बजे उठ जाते हैं, आप देखिए कुछ मेडिटेशन करिए, कुछ करिए, उसके बाद देखिए इतना रिलैक्स्ड आप फील कर रहे हैं, योर बॉडी माइंड सोल एवरीथिंग विल बी वेरी रिलैक्स्ड। बट द प्रॉब्लम इज दैट नाउ द जनरेशन दे आर नॉट एट ऑल वेकिंग अप इन अर्ली मॉर्निंग। ये प्रॉब्लम सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो आप थोड़ा ट्राई करिए सुबह उठने के लिए। और ये मैं कह रहा हूं आप सुबह इसीलिए नहीं उठ रहे हैं क्योंकि आपको अभी तक कोई मजेदार चीज अभी तक मिला ही नहीं, आपको कोई मजेदार चीज अभी तक मिला ही नहीं, सोने से मजेदार चीज कुछ मिला ही नहीं, इसीलिए आप सोते रहते हैं। कितना दुख का बात है ना, मतलब सोने से कोई मजेदार अभी चीज मिला ही नहीं, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग मेडिटेशन करेंगे, ठीक है। तो मेडिटेशन कैसे करेंगे, दिस इज द साइंटिफिक प्रोसेस। तो साइंस इज टेलिंग हाउ मेनी सेंसेस वी हैव? 5. So what are the 5 senses? Leg. Yes. Boys. क्या क्या senses है? Eye, ear, nose, tongue, skin. Yes. This is the 5. Only 5 senses we have, or more than this? 5, 6. What is the 6th sense? Yes. What is the 6th sense? Sometimes we speak na, my 6th sense is telling. What is the 6th sense? Forehead. Huh? Strict.
इंस्टिक्ट कौन सा है? सिक्स सेंस। लड़का लोग थोड़ा आवाज दो, इंटेलिजेंट है यार आप लोग। सब लोग लड़की लोग लेके जाएंगे क्या? यस, कौन सा है? यस, माइंड। माइंड इज द सिक्स सेंस. सो दैट्स व्हाई इन भगवद गीता कृष्ण इज टेलिंग दैट मनसष्टेन्द्रियाणि, mind is the sixth sense. So now we will see in the chanting process, in the meditation process, how these six senses. So science is telling in the meditation process, if the more than three senses are involved in a purified activity, then gradually this mind will be controlled. ठीक है? Out of the six senses, if more than three senses are involved in a purified activity, then gradually this mind will be कंट्रोल. ठीक है, लेकिन मैं बताने से पहले ही देखूंगा कि कौन कौन है आप एक्चुअली चाहते हैं, हम माइंड को कंट्रोल करना चाहते हैं और सीख के जाएंगे थोड़ा बहुत कैसे माइंड को कंट्रोल करना होता है. जितना उत्साह में आप हाथ उठा रहे आप करेंगे कि नहीं करेंगे? पक्का? कौन कौन है करेंगे? थोड़ा आवाज दीजिए. ठीक है, ठीक है, हम लोग अभी सिखाएंगे कैसे. तो देखिए, हम जो चैंटिंग का प्रोसेस कह रहे हैं, यू जस्ट सी दैट हाउ मोर देन थ्री सेंसेस आर इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस. ठीक है, तो दिस इज माय चैंटिंग बीट. ओके, सो दिस इज माय चैंटिंग बीट. So when you are chanting, you know anyone means in ISKCON which mantra we usually chant? Anyone? Yes, yes. Please, can you tell what is the mantra? Yes. Yes. Okay, please can you clap for her? Yes. So this is the mantra, okay? So this is the mantra. You see when we are chanting how more than three senses are involved. So when I am holding, you see my skin is involved, okay? So when I am chanting, so my tongue is involved. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. ठीक है? और ये कितने जोर बोलना है? आप देखिए, बहुत सारा मंत्र आप सुने होंगे कि एकदम चुपचाप करना है, लेकिन ये जो मंत्र है आप इस तरह बोलना है जैसे एटलीस्ट आप सुन पाएंगे. और अगर लाउडली कर रहे हैं तो दैट इज गुड. लेकिन आप जब हॉस्टल में रह रहे हैं, कोई किसी को डिस्टर्ब होगा, कुछ होगा, तो इसीलिए आप बहुत लाउडली नहीं करना है. आपको क्या करना है, बस आपको जितना ठीक से सुनाई देगा आप उतना ही जोर से बोलना है. तो आप जब बोल रहे हैं, अभी क्या हुआ, टोन भी इन्वॉल्व हो गया ना, और आप जब कह रहे हैं कान अभी उसको ही सुनाई देगा. और देखिए, इनिशियली क्या होता है, आपका माइंड इधर उधर जाएगा. क्लास का कुछ असाइनमेंट है, एग्जाम है, ये है, वो है, पेरेंट्स कुछ बोले थे, तो ये जाएगा. लेकिन आप माइंड को लेके आइए कि ये जो 10 मिनट में कर रहा हूं, माइंड बस ये मंत्र ही सुन. ठीक है, ये ही प्रयास करना है. तो अभी देखिए, स्किन इन्वॉल्व हो गया, टंग इन्वॉल्व हो गया, कान इन्वॉल्व हो गया, और उसके साथ साथ आप जब ये मंत्र कर रहे हैं तो आंखें क्या क्या अभी देखेगा? कृष्णा का कोई पास टाइम या कृष्णा का जो पिक्चर, ये आंखें में लेके आएंगे. और उसके साथ साथ माइंड इधर उधर जाएगा तो उसको लेके आना है, बस इसको ही सुन. तो इसीलिए देखिए कितना सेंसेस हमारा इसमें इन्वॉल्व हो गया. हाउ मेनी सेंसेस? पहला स्किन इन्वॉल्व हो गया, उसके बाद टंग इन्वॉल्व हो गया, उसके बाद नोज का इन्वॉल्व हुआ उसके बाद आईज इन्वॉल्व हुआ, उसके बाद ईयर इन्वॉल्व हुआ, और उसके बाद माइंड. हाउ मेनी सेंसेस? 5. So that's why in the Kali Yuga it is told that this is the most effective process for controlling the mind. कृतम ध्यायते विष्णु तृतीयम यजुतुम के द्वापरे परिचर्याम कलौ तद हरि कीर्तनम. So in the Pur Yoga, so in the Kali Yuga, this is the process to control the mind. So we will chant for 8 times here. You will repeat after me. ठीक है? Everyone is ready? ठीक है, आप लोग मेरे साथ ही दोहराए. ठीक है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। तो देखिए सबसे ज्यादा क्या होता है, क्योंकि आप जब पास आउट होने के बाद जाएंगे तो देयर इज लॉट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज देयर, और आप देखेंगे कि पिछले टाइम में जितना डॉक्टर लोगों को रेस्पेक्ट दिया जाता था आज के टाइम में उतना नहीं है। लोग काफी डिस्ट्रैक्टेड हो गए और लोग भी आके ऐसे ऐसे सवाल करते हैं, इतना परेशान कर दे। तो खुद अगर बहुत डिसिप्लिन अवस्था में हम लोग नहीं है तो बाहर लोगों को कैसे हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। और इसीलिए देखिए आप सब मोबाइल को चार्ज करते हैं, कब चार्ज करते हैं? सुबह ना। तो सुबह देखिए हम लोग चार्जिंग करते हैं और पूरा दिन यूज करते हैं। तो ऐसे ही हमारा माइंड को सुबह रिचार्ज कर लीजिए, ये चैंटिंग के प्रोसेस से स्टेबल कर लीजिए, फिर बाहर जाइए, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाए और आइए। ठीक है, ऐसे करेंगे तो फिर आप स्टेबल रह सकते हैं। सोसाइटी बहुत कुछ आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन इफ यू आर नॉट इन द स्टेबिलाइजिंग स्टेट देन हाउ यू विल स्टेबिलाइज अदर्स। ठीक है ना, आपके फैमिली को भी सपोर्ट करना है और मैक्सिमम में टाइम में देखिए आपका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी ये सब है, तो इसके हिसाब से आपका फैमिली लाइफ ये सब भी देखना काफी जरूरी है। और एक चीज मैं आज के क्लास में देखा, आई यूज टू गो डिफरेंट स्कूल एंड कॉलेजेस, तो मैं देखा कि आप लोग काफी शांत शांत है। आज के टाइम जो है ना, जितना आप वेंटिलेट करेंगे आपका बात उतना अच्छा रहेगा। मैं देखा काफी शांत शांत है। नो डाउट यू आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, बट स्टिल यू विल ऑलवेज ओपन अप। जितना आप बात करेंगे, जितना मिंगल करेंगे लोगों के साथ, क्योंकि सोसाइटी देखिए डिफरेंट। आप जॉब करने के बाद ना, आप पास आउट होने के बाद देखिए आपका सिनेरियो बहुत डिफरेंट है, बिकॉज नाउ यू आर स्पेंडिंग मोर टाइम इन बुक्स। लेकिन आप जब पास आउट होने के बाद जाएंगे, आप देखेंगे लोगों को हैंडल करना, लोगों का साइकोलॉजी समझना, लोगों के साथ अच्छा बात करना, इस सबसे बहुत मतलब इम्पोर्टेंस बात है। तो इसीलिए ना आप थोड़ा बात करना ज्यादा, थोड़ा इन्वॉल्व होइए, लोगों के साथ मिलिए। तो बहुत ज्यादा बुक तो पढ़ना ही है, लेकिन इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत सारा मैं ये देखा कि आप काफी कभी थोड़ा शांत है। हो सकता है मैं फर्स्ट टाइम आया तो इसीलिए आप शांत है। तो एनीवे, सो वी विल टेक सम क्वेश्चन। ठीक है, मैं जहां पे भी जाता हूं मैं देखा हूं 1 2 3 1 2 3 3 क्वेश्चन आने के बाद उसके बाद क्वेश्चन का बारिश हो जाता है। तो अभी हम लोग देखेंगे, डेफिनेटली वी आर वेरी